But let me start from the base itself. Fine. So as per your book, I'm starting the first chapter that is the introduction to economics, right? So first here we'll be discussing about a simple economy. That means here it is being discussed about what economy is. Just we should understand what economy is. ये टर्म बहुत बार सुना होगा ना, इकोनॉमी करो, पैसे संभालो, खर्च कम करो, ऐसा सब. Whenever we think about saving money, then your mom will definitely tell इकोनॉमिकली काम करो. ऐसा हमने सुना है ना, इकोनॉमी करो या इकोनॉमिकली सोचो, like saving resources. Like in your daily household घर में क्या सुनाई देता है? Saving money, saving time, and all those things. Okay, as a student, you must have heard all those things. My screen is visible to you, I suppose. Yes, yes, it's visible. Okay, very good. So I'm continue. So in our daily household, in our daily life, we normally heard all this term like economy karo, saving money and all that, right? So now since we will be studying economics as a subject, so what we will study here, economics as a subject will definitely deal with something called resources. As economic किस चीज को लेकर deal करेगी? It will be definitely with resources, dealing with different type of resources in an economy or in our country, in household, in any market, in any industry, in anyone's individual's life, everywhere. So normally, if I have to tell you about economics as a subject, what economics is. So economics is a subject that deals with economy. So now economy means, it means anywhere when we talk about economy, matlab think rationally and saving part. The basic thing is saving part. तो जब हम economy की बात करते हैं, the basic thing is optimization and saving. These two terms are there. And whenever we talk about economy, there are two most important things that will always come in our mind. That first thing is resources and second thing is scarcity. तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आइदर यू टॉक एट द इंडिविजुअल लेवल. अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ, मैं तुम वी ऑल आर इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंपनी, a market, industry, or entire economy as a whole, means I can say country as a whole, right? So wherever we talk about all those things, the basic things remain the same. There are two concepts. One is resource and another is scarcity. हर जगह पर ना यही होता है. Everywhere we'll discuss the same thing. Means entire economy. See here we are discussing about this. Like every individual has some amount of only a few of the goods and services that she would like to use. So the basic thing is scarcity. Every individual, कोई भी individual होगा ना, उसको जो चीज चाहिए या कोई resources, either you talk about money, time, anything, whatever we talk about, any resources you talk, nothing is abundant or nothing is free, and that is why these resources are scarce, and that is why we must consider our resources, how to utilize it. If it would have been free, I would not have charged anything to for teaching to you. If my time is free, did I charge anything for my services or for giving you a time of 1 hour or 2 hours in a week? I would not have. Right? You might not have charged anything for supplying food or doing a business. So nothing is free. Why nothing is free? Because the basic concept remains the same for the entire society, is resources are scarce. And since this scarcity is the most important factor, what we do is we use them economically. This is the basic thing. Now, here economical concept is fine, but the term that we use is optimum. We call it optimum or optimization. You might be doing this linear programming and all, means you will be using optimization technique in linear programming and different type of optimization technique and different decision making mathematical models are there. So you'll be doing it at maths. Okay. So the basic concept that we'll study is, first is resource scarcity,
First thing is resource scarcity, that is resources are scarce, and second thing is optimization. Optimization means it simply means the effective utilization of resources. Means we need to use it effectively and efficiently. These are two terms that I discussed yesterday also, effectively and efficiently. That is, अब ये दो चीज क्या है देखो, effectively and efficiently का मतलब क्या है? Effectively मतलब choosing the right one. कौन सा right decision है? That means either choosing the right product to produce, taking a right decisions, right investment proposal, something like that. So effectively is the first thing that we have to understand, and second thing is efficiently. Efficiently means like efficiently matlab kya? You need to increase your productivity. Simply you need to increase your productivity. Then how can we be efficient? It's simply minimizing our input. Input को कम करना है and output को बढ़ाना है. Right? We all know what is productivity. Productivity simply deals with the input and output ratio. Everything, whatever we are doing, we have to give some resources. We utilize our resources, then a system, a processing is done, and system पढ़ा है ना, computer system. उसमें क्या होता है? Input देते हैं, processing होता है और output generate होता है. So as in our society, so as in a production system, so as in a service system, everywhere we have to give input. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक इनपुट, जब एक देखो सोसाइटी में इकोनॉमिकल जब हम बात कर रहे हैं कि वी आर यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज, व्हाई वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर स्केर्स, व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट ऑल्टरनेटिव यूजेस. इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हम ए में भी लगा सकते हैं और बी में भी लगा सकते हैं. सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो सपोज रिसोर्सेज मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए. नाउ फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑप्शन इज ए, जहां पे मैं आराम से वो 10 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, एनीथिंग आई कैन डू, राइट. सेकेंड ऑप्शन इज आई कैन गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट. सो दैट मीन्स रिसोर्सेज आर स्केर्स, 10 लाख रुपए ही हैं. अब उसमें से मैं आइदर आई कैन चूज फॉर माई कंजम्पशन, चलो खा पी लो, उड़ाओ, मजे करो, ठीक है. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड सेकेंड ऑप्शन इज माई इन्वेस्टमेंट. तो दो ऑप्शन मेरे पास हैं. तो ये जो अब देखो यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन मैंने देखा, ए और बी, तो कौन सा ऑप्टिमम होगा? सॉरी, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट. तो ये दोनों में से कुछ समझ में आ रहा है मुझे कि मैं अगर रिसोर्सेज को यूज करती हूँ तो कौन सा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा? द बेस्ट यूटिलाइजेशन वुड बी डेफिनेटली इट्स इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अब नो डाउट कंजम्पशन हम करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एक होता है, कंजम्पशन तो हो गए, बट अब इसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो जो पैसे हम लगा रहे हैं इट विल ऑन हायर रेवेन्यू. ये तो क्लियर है ना कि 10 लाख के 10 लाख नहीं रहेंगे. अगर मैं यहाँ खर्च करती हूँ तो 10 लाख कंज्यूम होगा, खर्च होगा. मेरे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ आज की डेट में 10 लाख, तो मे बी आफ्टर 5 years वो मुझे इंटरेस्ट एंड ऑल मिला के मुझे 12 लाख तो रिटर्न देगा. 12 लाख नहीं भी हुआ तो चलो 10 लाख 50,000 ही ले लो, 10.5. तो ये जो 50,000 है वो तो मेरे पास एक्स्ट्रा आएंगे ना. तो यहाँ पे आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या हुआ? व्हेन आई चूज फॉर दिस सेकेंड ऑल्टरनेटिव. तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? ए एंड बी. मैंने कौन सा चूज किया? बी, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स. तो मुझे क्या करना है? उसको ऑप्टिमली यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है. दैट विल जनरेट अ हायर रिजल्ट, राइट. सो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिकली वी हैव टू टेक सम डिसीजन, वी कंसिडर ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. तो हमें इकोनॉमिक्स यही सिखाता है कि हमें अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखना है, ठीक है. कंसिडरिंग अवर रिसोर्सेज, पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास रिसोर्सेज है, ठीक है. उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? ऑल्टरनेटिव्स. क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है? नाउ आई विल चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू चूज, बेस्ट वन टू चूज. यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिसीजंस और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स
यूटिलाइजेशन. इज दिस क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ना अब देखो, जैसे ये इकोनॉमी का जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ पर. अब देखो वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग. क्या है, क्या गुड्स में लगाना है, क्यों? आई कैन प्रोड्यूस एनी गुड्स, यू विल से आई कैन प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विसेज वट एवर. देखो मैंने पहले ही बता रही थी, जैसे मैं इनपुट देती हूँ, ये जो रिसोर्सेज है वो इनपुट. इनपुट क्या है? इनपुट क्या होगा? ये मेरा रिसोर्सेज है ना, जो मेरे रिसोर्सेज है वही मेरे इनपुट. हाँ. ये रिसोर्सेज को हम कहाँ यूज करेंगे? व्हाट आर माय रिसोर्सेज? इन इकोनॉमिक्स वी हैव 4 resources, that is land, labor, capital and organization. These are our resources. इसको हम क्या करते हैं किसी भी बिजनेस में, ये हम इनपुट के जैसे यूज करते हैं. इनपुट करने के बाद अब नो डाउट अपना बिजनेस बनने में जो भी प्रोसेसिंग होनी है होगा, फिर आउटपुट जेनरेट होगा. What would be our output? It could be a product or a services. ये प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विसेज हो सकता है. Now, as a businessman, मैं क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करूंगी फॉर द सोसाइटी एट लार्ज? देखो, एज अ बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर, प्लीज इग्नोर माय स्पेलिंग क्योंकि मैं पेंट में लिख रही हूँ. सो बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर हो, व्हाट विल यू कंसिडर? आप क्या, मतलब आपका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. आप एक बिजनेस क्यों करोगे? प्रॉफिट मोटिव. Then it could be a social motive as well, that is serving to the society at large. Society at large, this could be our two motive. तो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो भी होगा उसका मोटिव तो यही होगा. एक हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव, अनदर इज सोशल मोटिव. देखो नॉर्मल सी बात है, जब हम एक बिजनेस करते हैं तो सिर्फ सोशल मोटिव नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव होगा ही. ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की तो स्कैसिटी है. Resources are scarce, and with that scarce resources, I am allocating it. I am allocating it means I am doing a business. मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक बिजनेसमैन हूँ. I am doing a business. So definitely, if with that scarce resources, क्योंकि वो resources को मैं अपने लिए यूज नहीं करती, मैं अपने लिए खा पी नहीं रही हूँ, कंजम्पशन नहीं कर रही हूँ, घूम फिर नहीं रही हूँ. Rather, what I am doing is that I am investing in my business. So I am allocating in my business. So what will I expect? I will serve to consumer. अब कंज्यूमर जितने ज्यादा मैक्सिमम होंगे उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. राइट? दिस मीन्स मुझे बहुत ऑप्टिमली डिसीजन लेना पड़ेगा. अब क्या डिसीजन लेना पड़ेगा? जब मैं बिजनेस करूंगी मेरा ऑप्टिमल डिसीजन किस चीज को लेगा? फर्स्ट थिंग इज व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है? और whom to produce and how to produce. देखो इसको ना हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं. दिस आर दी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. बट जस्ट मैं आपको एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ये समझाना चाह रही हूँ कि इफ यू आर विलिंग टू डू अ बिजनेस एज एन इंडिविजुअल, और आई एम willing to doing a business, means if I am thinking of doing a business, I must think about this. मुझे भी तो ऑप्टिमली डिसीजन लेना होगा ना कि भाई क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, हु आर माय कंज्यूमर एंड हाउ टू प्रोड्यूस. These are 3 basic things that even at the individual level I must consider. Right? So I must consider this thing, as well as these are the 3 central problems of an economy at a large. Now let us move to the concept of economy. Okay. So the first portion I have discussed. The second portion is central problems of an economy. Now, as we have discussed that in our society, if we are staying, this is our social needs. These are basic needs. Huh? Everyone will transact with each other. In society, we have seen. In society, we all are staying. There are somebody called producers, somebody called consumers, right? Now, देखो एक चीज क्या हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तुमको, जस्ट बेसिक एग्जांपल. मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, वो मुझे फीस देता है, तो वहां से मेरे पास पैसे आए. वो पैसे क्या मेरे पास ही रह गए? नहीं ना, मैं फिर वो पैसा किसी और को दूँ. सो द बेसिक थिंग इज, पैसा जो है इकोनॉमी में
या रिसोर्सेज आप कुछ भी ले रहे, जैसे ये मेरे पास इस किसी एक के पास है, सपोज कंज्यूमर ए, मेरा एक कंज्यूमर है ए, ही पेड समथिंग टू मी, ठीक है, तो ये मैं हूँ, मेरे पास आया, ठीक है, पीएस। अब यहां से फिर मैंने सपोज स्कूल में फीस दी, राइट, क्योंकि स्कूल वाले सर्विस दे रहे हैं, देन मैं मार्केट में गई, मार्केट वाले को दी, ठीक है। अब देखो ये जो मार्केट वाला, ये स्कूल वाला, ये भी किसी को पेमेंट कर रहा है, ये जो है ये भी किसी को पेमेंट कर रहा है, राइट। देखो एंटायर आप प्रोसेस में देखो पैसा जो है ना वो फिर घूम फिर के इधर से उधर करके वो सर्कुलेट हो रहा है, जिसको हम इकोनॉमी में बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द एंटायर सर्कुलर प्रोसेस हियर, वो हम लोग डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ आपको कि किस तरीके से सोसाइटी में, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें किस तरीके से ये रिसोर्सेस एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे रिसोर्सेस की बात है, ये जो रिसोर्सेस हैं, these are being utilized by the producers for production। रिसोर्सेज जो प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं किस लिए? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। फाइन। नाउ अब देखो मेरे कंज्यूमर्स कौन है, कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है? कंज्यूमर की नीड्स होगी गुड्स और सर्विसेज। कंपनी क्या ऑफर करेगी, एक प्रोड्यूसर क्या ऑफर करेगा? गुड्स और सर्विसेज, राइट। नाउ ये जो गुड्स और सर्विसेज की बात मैंने की, दिस कुड बी द नीड, दिस कुड वर्क एट नीड्स लेवल, और नीड्स के बाद आ जाता है वांट्स लेवल। नीड्स मतलब हमारी बेसिक जरूरत, उसको बोलते हैं हम नीड्स, ठीक है। कोई भी चीज मतलब रोटी कपड़ा, ये हमारे रहने की, रोटी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दिस आर आवर बेसिक नीड्स। Whereas apart from this, whatever comes, this is our wants. Now remember one thing, needs can be satisfied whereas wants can never be satisfied. ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नीड्स आपकी ना फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे सस्टेनेंस के लिए जरूरत है उतना हमारे पास हो जाता है, और उतना से मतलब वो बस हो जाता है, काम खत्म। लेकिन हम लोग नीड्स के बाद जो भी एक्स्ट्रा, जैसा हमें खाना कितना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी सब्जी, इतना हमारे बेसिक नीड्स है, उतना हमें सर्वाइवल के लिए जरूरत है। बट अभी क्या लोग अभी बहुत ज्यादा मतलब छोले भटूरे खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, ये वो वट एवर यू विल ईट, तो अभी वो वांट्स कैटेगरी में आ गए। अब देखो वांट्स जो है ना वो कभी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इट विल डुप्लीकेट और इट विल मल्टीप्लाई इन रिलेशन टू योर वांट्स। नीड्स फुलफिल हो जाएगी, बट क्या होता है वांट्स जो है ना, जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अगर एक है, वांट्स नीड्स तो फुलफिल हो रही है, और ये वांट्स है, ये पहुंचना है हमको, यहाँ इच्छा है जाने की। अब रिसोर्सेज बढ़ गई, 2 रिसोर्सेज हो गई, नीड्स तो आपकी फुलफिल हो गई, पहले एक वांट्स थी, अभी वांट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 3, तो वांट्स इतनी मल्टीप्लाई होती है दैट इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। तो क्या होता है, मैं एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, तो मुझे सबसे पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एम इज टू सर्व द कंज्यूमर, तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, माय कंज्यूमर्स को समझने के लिए उसके नीड्स और वांट कैटेगरी को समझना पड़ेगा। कौन मेरे नीड्स, मेरे जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, वेदर इट इज इन नीड्स कैटेगरी और इन वांट्स कैटेगरी, मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं जो ऑफर कर रही हूँ वो कौन सी कैटेगरी में, बिकॉज अकॉर्डिंगली आई विल एलोकेट माई रिसोर्सेज ना। तो ये बेसिक फंडा है एक सोसाइटी में, ये रिसोर्स एलोकेशन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन लेगा, ये सारी चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। There will be different type of theories in regards to this. The basic concept remain the same. The entire economics is all about resources, scarcity, utilization. ये 3 चीज आप अच्छे से याद कर लो, ये 3 चीज को लेकर ही पूरी इकोनॉमिक्स है। रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी, यूटिलाइजेशन, ये 3 चीज ही। अब इसमें क्या है, 2 फंडा है, 2 चीज है। एक है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, प्रोड्यूसर कैसे खर्च करेगा,
प्रोड्यूसर क्या टेक्नोलॉजी यूज करेगा, क्या डिप्लॉय करना है, कहाँ पे पैसे लगाने, ऑल दोस थिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या सोचेगा, कंज्यूमर्स कैसे पैसे खर्च करेगा, कंज्यूमर्स कैसे पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये दो दो पॉइंट ऑफ व्यू, पूरी इकोनॉमिक्स इन दोनों को लेकर ही है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, वो दोनों कैसे सोचेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज स्कैर्सिटी तो मैंने पहले बताया, बट वो होगा किसके लिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी किसके लिए होगी, प्रोड्यूसर्स के लिए, देन कम्स द कंज्यूमर्स के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका भी दो लेवल होता है, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, इसके भी दो लेवल होते हैं। ठीक है, हम लोग जो दो लेवल पढ़ेंगे, देयर वुड बी मोर इन डेप्थ स्टडी, बट बेसिक लेवल मैं तुमको बताती हूँ। एक हो जाता है माइक्रो लेवल एंड सेकेंड इज द मैक्रो लेवल। अब देखो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का मतलब क्या होता है। एक हो गया आपका माइक्रो लेवल, जब मैं माइक्रो लेवल की बात करती हूँ, हो गया माइक्रो लेवल। ठीक है, और मैक्रो लेवल जब हो जाएगा, ये हो गया, मतलब सीधी सी बात है, समझ रही हो कि माइक्रो ये छोटा सा हो गया माइक्रो, है ना, क्योंकि दिस इज द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर सेक्शन, वेयर इज मैक्रो मीन्स द ब्रॉडर सेक्शन। तो दिस कुड बी, ये जो स्टडी है या एनालिसिस है, तो दिस इज एक्चुअली इन रिलेशन टू कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर मैं लेती हूँ इंडिविजुअल मार्केट, एक इंडिविजुअल मार्केट ले रही हूँ इन रिलेशन टू एंटायर डोमेस्टिक मार्केट या इंडियन मार्केट, मैं पूरा इंडियन मार्केट को ले रही हूँ। सपोज मैं ले रही हूँ कोलकाता का टेलीकॉम मार्केट, ये कोलकाता टेलीकॉम मार्केट है, और ये इंडिया का टेलीकॉम मार्केट, इंडियन टेलीकॉम मार्केट टोटल। तो कोलकाता का मार्केट वुड बी स्मॉलर देन डेफिनेटली एज कंपेयर टू इंडियन टेलीकॉम मार्केट। जब मैं एनालिसिस करूंगी ऐसा ही होगा। बट आप देखो इसको मैं अगर चेंज कर दूं, इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अगर मैं माइक्रो लेवल पे यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैं इंडिया को स्टडी कर रही हूँ, मैं इंडियन टेलीकॉम मार्केट को स्टडी कर रही हूँ in relation to our total global telecom market, तो क्या होगा आप देखो, इंडियन टेलीकॉम मार्केट जो है ना वो छोटा सा दिखेगा इन रिलेशन टू दी ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट। तो माइक्रो एंड मैक्रो इज नथिंग बट द लेवल ऑफ एनालिसिस एंड इट इज एक्चुअली shown in respect to whatever you are analyzing, in contrast to बोल सकते हो। ठीक है, तो माइक्रो इज द स्मॉलर सेगमेंट, द इंडिविजुअल सेगमेंट, द स्मॉलर सेगमेंट, मैक्रो इज द ओवरऑल और द अग्रीगेट। तो अगर हम लोग बेसिक आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कि माइक्रो में हमारे सारे थ्योरी, जितने भी थ्योरी है वो पोर्शन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, जितनी भी तरह की थ्योरी ले लो। और मैक्रो में जो होता है वो हमारा बेसिकली द अग्रीगेट, टोटल हमारे इकोनॉमी को जो होता है वो स्टडी की जाती है मैक्रो लेवल। क्या समझ आया? अच्छा, नाउ यू टेल मी व्हाट एवर प्रॉब्लम यू हैव, इफ एनी।